But we are not terrorists. I'll show you this my I card. I am son of a farmer. I am retired Fauji. So I am son of a farmer. So I want to deliver this message to Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi that this is under a conspiracy. They have assigned these bills to us and we are not going to accept it at any cost. So he has to cancel these bills back. Why? Because they are the dead ones. You can say Kisan Maru और तबाही के वारंट है हमारे. I want to convey a message that he must know that this is a big protest in my life I have never seen. Now Punjab and Haryana both are jointly we have come on this platform to protest these bills. Kindly grant us the right to recall. We will recall this bloody government. हम आज उसको रिकॉल कर लेंगे because we don't have the right to recall. That's why यूपी में ये लोग हैं. किसान जो है वो 86% किसानों के पास तो छोटी जोत के किसान है. 86% किसान. अब उनमें से आधों के पास तो ट्रैक्टर तक नहीं है और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं तो हम आधे से ज्यादा लोगों के पास हमारे पास भी ट्रैक्टर तक नहीं है. ठीक है. अब उस परिस्थिति में क्या है कि जिनके पास ट्रैक्टर तक अवेलेबल नहीं है उनके पास गोदाम कहां से होंगे. तो आप जो ये जमाखोरी जो है जमाखोरी को रोकने का जो कानून था उसमें जो बदलाव आपने किए हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट 2020 में, उस एक्ट में जो बदलाव किए ये किस फूफा जी के लिए किए पहले मोदी जी ये बताएं. मैं क्या कहना चाहता हूँ, कभी एस ऑयल का मुद्दा उठाते हैं, कभी खालिस्तानी मुद्दा. एस ऑयल हमारे पास जमीनें नहीं रहेंगे, पानी के क्या आप मुंह धोएंगे क्या पानी का. ये क्या बबीता फोगाट नहीं बोल रही थी SYL का पानी दे रहे पंजाब. हम उससे ये सवाल करते हैं बहन हमको एक बात बता, जब हमारे पास खेत ही नहीं रहेंगे तो पानी के तक हम बासण धोएंगे आप मोदी. हार हो जाती जब मान लिया जाता है, जीत होती जब ठान लिया जाता है. हम ठान के हैं मर जाएंगे जीत के लिए. भगत सिंह ने कहा था अपनी बात को खत्म करूंगा, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल गा जाएगा. मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा. इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद. ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ. ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲਾਠੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਕਰੇਗੀ. ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुटे है इस किसानी संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾत करते हैं. जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुनीस बरवाला, यूपी जिला बागपत. अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से आए? उत्तर प्रदेश से आए हैं. गन्ना बहुत वहाँ पे होता है उत्तर प्रदेश में. जैसे हमारे पंजाब में तो जो प्राइवेट मिल हैं, जो मिल हैं वो पैसा ही नहीं देती है. आपके उत्तर प्रदेश में कैसे है, कितना है इस बार पैसा बना हुआ है जो अभी तक किसानों को नहीं मिला है? साल का पिछले साल का 3 महीने का बकाया है और 3 महीने का अब शुरू होगा. 6 महीने का बकाया, 3 पिछले साल का और 3 इस साल का. 3 महीने का, 3 साल से कोई रेट नहीं बढ़ा गन्ने का, भुगतान हो नहीं रहा, यह हालत है. I am ex-serviceman. I want to speak in English through your channel. I want to deliver a message to our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi as well as Agriculture Mr. Narendra Tomar that they are telling that the illiterate and poor farmers, they are terrorists, they are Khalistani. So they must know that we are the people of this universe. How say the government, how to say that there is a terrorist? Is not recognized to the farmer as a terrorist. Yeah. They are acknowledged as a terrorist, but we are not terrorists. I'll show you this my I card. I am son of a farmer. I am retired Fauji. So I am son of a farmer. So I want to deliver this message to Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi that this is under a conspiracy. They have assigned these bills to us and we are not going to accept it at any cost. So he has to cancel these bills back. Why? Because they are the dead ones. You can say Kisan Maru और तबाही के वारंट है हमारे. And we are not going to accept it at any cost and we will not go from these borders back. We will not go alive. Our dead bodies will go back to our homes. So one more thing, is telling himself the chowkidar of this India, but he is the chowkidar of the big bureaucrats like Ambani Adani's. One more thing I will tell you, he is telling himself that he is chai wala. Now he has taken Punjabi Dudhwa. So it's over to him now. One more thing to your channel, I want to convey a message that he must know that this is a big protest in my life I have never seen. Now Punjab and Haryana both are jointly we have come on this platform to protest these bills. So now
राम और लक्ष्मण की जोड़ी मिल गई है। सारे फार्मर अभी एक साथ He हैं। has to change the Singh border name as a Singh border name. He has to protest. We are protesting here. इसका नाम सिंह बॉर्डर रख दिया। Singh border रखा जाएगा। In the coming decades, this will be known as Singh border. It's not Singh border. उसको नाम चेंज करने का बड़ा शौक है, तो इसका नाम सिंह बॉर्डर रख दे। लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार, उससे क्या होता है? इट विल बी थ्रोन बाय रूट इटसेल्फ इन द कमिंग डिकेड्स। ये हैज टू कम इन फ्रंट ऑफ द जन आदेश के सामने आना ही पड़ेगा। यूपी में इसलिए बीजेपी सरकार है बिकॉज वी डोंट हैव द राइट टू रिकॉल। काइंडली ग्रांट अस द राइट टू रिकॉल, वी विल रिकॉल दिस ब्लडी गवर्नमेंट। हम आज उसको रिकॉल कर लेंगे बिकॉज वी डोंट हैव द राइट टू रिकॉल। दैट्स व्हाई यूपी में ये लोग हैं। अन्यथा हालात ये है, जो गन्ना समितियां हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं सहारनपुर से ताल्लुक रखता हूं, जो गन्ना समितियां हैं उनका इतना बुरा हाल है। सरसावा की जो शुगर फैक्ट्री है, वहां की जो गन्ना समिति है, वहां पेशाब जाने के लिए किसान के बाथरूम तक नहीं है। ये परिस्थितियां इन्होंने गन्ना समितियों की बना रखी है वहां पर। और ये बात करते हैं कृषि कल्याण की। यदि इनके दिल में सफाई होती और ये कृषि कल्याण करना चाहते तो सबसे पहले स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते, जो कि लंबे समय से लंबित थी। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम सहारनपुर से हैं और हमारे वहां की जो लोकल मंडियां हैं उनका इतना बुरा हाल है, हद से ज्यादा बुरा हाल है, कई कई दिन तक खरीद नहीं होती। बरसात आ जाए, शेड नहीं है, शेड नहीं है। तो कड़ाके की सर्दी में मतलब यही बात, अगर हम सरकार के आगे कुछ भी बोले हम देशद्रोही हैं, चाहे किसान है जो कुछ है, अच्छी बात बोलेंगे। हम अपनी फसल, क्योंकि हम सरसावा कस्बे से ताल्लुक रखते हैं, तो सरसावा से हम सहारनपुर में फसल बेचने की बजाय, और दो ही फसलें हैं जिन पे एमएसपी मिलती है। ये देश को थोड़ा गुमराह किया जाता है। देखो 22 फसलें हैं जिन पे 23% उन पे सब पे एमएसपी होना चाहिए, बिल्कुल सही। मिलती किसी पे नहीं है, मिलती केवल धान और गेहूं पे है। और जब हम धान जो है, अपना धान और गेहूं सरसावा सहारनपुर की बजाय जब हम यमुनानगर में बेचते हैं तो हमको वहां दाम ज्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में ही केवल और केवल एमएसपी और एपीएमसी मंडियां जो है सिस्टम ठीक से काम करता है। अब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो हरियाणा और की तरफ लगती हुई सीमा के जो किसान हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि एपीएमसी के क्या फायदे हैं और ना होने के क्या नुकसान हैं। गन्ना तो हम पहले ही बॉन्ड सिस्टम पे उगा रहे हैं, उसके आप देख लो पेमेंट कई महीने तक नहीं होती, सालों तक पेमेंट नहीं होती। और हमारी पेमेंट जो है, जो गन्ना हमने पिछले बरस डाला था शुगर फैक्ट्री में, सलेमपुर शुगर फैक्ट्री में, उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ। और जैसा मैंने बताया, गन्ना समितियों में बाथरूम तक की सुविधा नहीं है। ये बात करते हैं सुविधाओं की, जन सुविधाएं नहीं है, जन सुविधाएं तक नहीं है, जन सुविधाएं नहीं है, महिलाओं की सुविधाएं नहीं है, बच्चों की नहीं है, बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये परिवार को लेके, ट्राली को लेके कई बार वहां जाते हैं तो वो उनको डेट देते हैं, लेकिन किंतु परंतु करते हैं। मगर अब समय बीत चुका है, वो समय आ गया है, यहाँ से एक बहुत बड़ी क्रांति निकल रही है कि अब लेकिन किंतु परंतु देश में नहीं चलेगा। अभी आपको लगता नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की ईगो का सवाल है? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना, वो कह रहे थे ना कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, ऐसा है वैसा है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, कोई यहाँ बागपत से है, कोई बड़ौद से है, कोई बिजनौर से है, मैं सहारनपुर से हूँ। तो हम ये कहते हैं, हम चैलेंज करते हैं, प्रसार भारती इनका अपना है। प्रसार भारती की कितनी सेवाएं, 38 के आसपास इनकी दूरदर्शन की सेवाएं हैं, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और साथ में रेडियो स्टेशन भी हैं। हम कहते हैं कि एक काम करिए, हम सभी जो यहाँ पर किसान एकता मोर्चा की, जो संयुक्त किसान एकता मोर्चा के जो सदस्य हैं, उनमें से हम चुन के भेज देंगे, भैया हमारे तरफ से ये 4 आदमी चले जाएं और आपकी तरफ से 4 मंत्री आप भेज दीजिए, कर जो हमारी तरफ से जाएंगे आप भेज दीजिए, या हम किसी भी छठवें किसान को छांट लीजिए, और हम फिर जो है इनको सब पूरे देश के सामने लाइव डिबेट में हम बताएंगे कि कानून कैसे खराब है। फायदे इसके बिल्कुल भी नहीं है। फायदा इसका कैसे है, आप एक बात बताइए। इसमें एक कानून है जो कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 है, जिसमें अमेंडमेंट किया गया है। वो अमेंडमेंट करके इन्होंने क्या कर दिया है कि उसमें से दाल चावल कई दलहन कई तिलहन ऐसे जो हैं उसमें से लिस्ट में से हटा दिए। तो अब उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि देखो, किसान जो है वो 86% किसानों के पास तो छोटी जोत के किसान है, 86% किसान। अब उनमें से आधों के पास तो ट्रैक्टर तक नहीं है, और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं तो हम आधे से ज्यादा लोगों के पास, हमारे पास भी ट्रैक्टर तक नहीं है। ठीक है, अब उस परिस्थिति में क्या है कि जिनके पास ट्रैक्टर तक अवेलेबल नहीं है, उनके पास गोदाम कहां से होंगे? तो
तो आप जो ये जमाखोरी जो है जमाखोरी को रोकने का जो कानून था उसमें जो बदलाव आपने किए हैं असेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट 2020 में, उस एक्ट में जो बदलाव किए ये किस फूफा जी के लिए किए हैं? पहले मोदी जी ये बताएं, मतलब वो किसके लिए किए? अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, रद्द करो जी। मैं बताना चाहता हूँ, आपने बहुत पूछा ना कि मतलब फायदा क्या होगा। 1991 में इकोनॉमी को खोला था, हमारे इकोनॉमी फायदा तो है ही नहीं इन कानून। पूरा बताऊंगा ना मैं, सुनो एक बार। जैसे 1991 में इकोनॉमी को खोला था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, तो उसका क्या नतीजा है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, वो बोलती है कि देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन है। क्या हम कारखाने लगाएंगे? इकोनॉमी किस लिए खोली थी? स्टेट का इंटरवेंशन क्यों होना चाहिए? गरीब जनता को उठाने के लिए। समाजवाद की बात किसने की थी? सुभाष चंद्र जी बोस ने, भगत सिंह ने। वो खतरे में आज ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना रहे हैं। आज क्या हो रहा है देश में? लिबरलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं नियो लिबरलाइजेशन। ये नियो लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का एक सबसे बिगड़ा हुआ स्वरूप है जिसको बोलते हैं नियो लिबरलाइजेशन। तो ये तो सभी बात, और आपको क्या लगता है फिर हल क्या होना चाहिए? आप केवल और केवल मात्र यही है। ये तो मालूम है कानून रद्द होने चाहिए, और साथ में साथ ये नहीं लगता आपको मांग ये भी चाहिए 23 फसलों पे भी एमएसपी चाहिए? निर्वाचन आयोग की सिफारिशें हूबहू लागू होनी चाहिए, जैसे थी वैसे की वैसे। एमएसपी गारंटी होना चाहिए। अब सभी फसलों पे जो केरल में ये कहते हैं कि लेफ्टिस्ट ऐसे हैं वैसे हैं। केरल में कई सब्जियों तक पे एमएसपी घोषित कर दी गई है। ये अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, हम ये लड़ाई ऐसे ही जीतेंगे। और अब सुनने में आ रहा है कि ये गन्ना किसान जो हैं उनकी पेमेंट भी जल्दी जल्दी करने की बात कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हो, पहले क्यों नहीं कर रहे थे? काले कानून रद्द होने चाहिए, और किसान की जो आवाज है, किसान सर्वोपरि है। ये राष्ट्र प्रधान देश है, किसान प्रधान देश है। जो आजादी का नारा बुलंद हुआ था, जय जवान जय किसान, उस नारे पे पूरे देश में जागृति आई थी। उसी नारे पे आज देश खड़ा है। उस नारे को जितने भी सरकारों ने कुचलने की कोशिश की थी, आज उन लोगों का बस्ता पकड़ने वाला कोई नहीं है। उनके घाट पे पानी आपके पास आ रहा हूँ। आप क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना कि इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और एमएसपी की बात की ना भाई ने, सही बात की। एमएसपी स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी 2005 रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला था C2 पे होगा एमएसपी, है ना, A2+FL पे हो। बात क्या है कि हम बाजार में जाते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे खरीदते हैं, कुछ भी चीज होती है। यहाँ मिनिमम की बात करें और वो मिनिमम C2 पे मिलेगा। A2+ इसका क्या मतलब है कि न्यूनतम से न्यूनतम है, ये कम से कम है। तो हमें क्या चाहिए? मतलब एमएसपी दे दो, या हम घर चलाए जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि एमएसपी लिखित में दे दो, कागज अपने पास रख दें, क्योंकि अक्सर क्या है सरकार कागज खो देती है। रफाल के कागज खो दिए। अब इलेक्ट्रॉन बोर्ड में जो घोटाला हुआ है ट्रांसपेरेंसी के नाम पे 95% बीजेपी को बताओ ना, हमें कागज कहाँ है? ऊपर से जो बोलते हैं ना, हमने मांगा डाटा कि भैया किसान जो आत्महत्या लॉकडाउन के समय ना जो पार्लियामेंट का सेशन आया, 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर अपने घर गए, को रास्ते में निपटा, कोई घर जाके निपटा, मरे कि नहीं मरे? पार्लियामेंट का सेशन आया, क्या बोले? हमारे पास कोई डाटा भी नहीं। एनडीए का मतलब ये नो डाटा अवेलेबल। मतलब क्या है कि मतलब ये मैं देश को बेचना चाहते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, कभी एस ऑयल का मुद्दा उठाते हैं, कभी खालिस्तानी मुद्दा। एस ऑयल हमारे पास जमीनें नहीं रहेंगे, पानी के क्या आप मुंह धोएंगे क्या पानी का? क्या बबीता फोगाट नहीं बोले थी SYL का पानी देवे पंजाब। हम उससे ये सवाल करते हैं, बहन हमको एक बात बता, जब हमारे पास खेत ही नहीं रहेंगे तो पानी के तक हम बासण धोएंगे? आप मोदी दूसरी बात छोड़ दो, लेट मी कंप्लीट पूरा करने दे, बोलने सुन, मैं देने लग रहा, सुन तो बात। 1906 आता है, पहाड़ों से हमेशा पानी नीचे की तरफ आता है। आज मैं आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, पहाड़ों से हमेशा पानी नीचे की तरफ आता है, कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता। हिमालय पे आप पानी ले जाओगे, हमें उल्टी गंगा बह रही है क्या? मूर्ख या बेवकूफ समझ रखा है क्या किसान को? हमारे को पानी की ना पहले जरूरत थी ना अब है। पानी का हमारा मसला ही नहीं है। ये आप लोगों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये पंजाब हरियाणा को लड़ाया। नहीं, 2004 में जैसे 98 से लेकर 4 तक अटल जी की सरकार रही, 1977 में डिसीजन आया 214 किलोमीटर की कैसवाई कल्याण बनेगी। 1980 में हरियाणा ने 91 किलोमीटर की कंप्लीट कर दी थी, पंजाब ने नहीं की। 98 से 4 तक अटल जी की सरकार, 2014 से अब 6 इनकी सरकार, अकालीन के साथ रही है, उनकी सरकार रही है। हरियाणा में 14 में इनकी सरकार है, तो उनकी से। तो सरकार किस लिए वोट देकर बनाते हैं? बनानो कल्याण कौन मना कर रहा है? ऊपर से खालिस्तानी आतंकवादी बोले। अगर मैं खाली आतंकवादी हूँ तो आप ऐसे खड़े हो सकते हो, हमारे साथ बात कर सकते हो? वो तो धंधा करें ना। मैं कहना चाहता हूँ डिवाइड एंड रूल पे, डिवाइड एंड रूल कर देना। राणा जी की होता कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखेगा, बहती धारों का क्या होगा?
क्योंकि गंगा भी पानी, यहाँ पे जमजम भी पानी है, मूला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? उन फिर का प्रश्नों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हवा में सांसें सबकी, क्या हवा भी नहीं बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा है, काम का डोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी? ये डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। देश की बात क्यों करते? पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर, स्विस बैंक अकाउंट में कौन से मोर हो देश का दाना खाएंगे? मोरों को दाना खिलाते ना, देश का दाना उन मोर कौन से हैं? उनका नाम बताओ ना, हमें बताओ। शिक्षा, स्वास्थ्य में क्या बात है? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली, पानी, इन पे बात करो ना। मैं बात करूं हमारी देश की सरकार एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ सिस्टम और किसी पे बात नहीं करना चाहती। टाइम हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आती है, वो बोलते हैं कि टॉप 500 ना, उसमें एक भी यूनिवर्सिटी नहीं इंडिया की। ये हालात हमारे देश में। ASR की रिपोर्ट आती है, SER की, प्रथम नाम का जो निकालता है, उसमें बोलते हैं 60% हमारे बच्चे बेसिक न्यूमेरिक नहीं कर सकते, 50% इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये तो चाहते हैं कि गोबर पानी खाएं, गोबर मूत्र आप तो खाते हैं, समझ ना, गोबर मूत्र की बात करते हैं। ये चाहते हैं इनको ऐसे बरगलाए और बकाए रखो कि सवाल पूछेंगे तो फिर इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये ना धर्म के ना साइंस के, ये सिर्फ रिलायंस के। RSS का वास्तविक नाम बदलकर इनको अब वास्तविकता सबको समझ में आ गई है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, ये रिलायंस सेवा संघ है। और इस रिलायंस सेवा संघ ये इतना पूंजीवादियों को दंडवत है, इतना दंडवत है कि ये लोग मोदी साहब तो ये भी कहते हैं इनके पास पहले डिजिटल कैमरे थे लेकिन आए बाद में है। डिजिटल इंडिया बना था ना, बन रहा है ना। ऐश्वर्या रेड्डी एक लड़की है, SRCC कॉलेज में पढ़ती थी, वो 18 साल की लड़की है और उसके फांसी खा गई। किस कारण? टॉपर थी, 99% नंबर आए थे उसके। बड़ी त्रासदी है हमारे देश। क्या बोल रहा हूँ, 60% लोगों को ये भी नहीं पता नाइट क्या होती है। मैं गाँव में जाता हूँ, मेरे घर वाले पूछते बेटा नाइट क्या होता है? ये नेट क्रांति, ये डिजिटल क्रांति, ये हो गया डिजिटल इंडिया। लोगों के पास एजुकेशन है नहीं। दिल्ली के 20 से 30 किलोमीटर के रेडियस में डेमोक्रेसी का ढोल पीटने से देश डेमोक्रेटिक नहीं हो जाता। आप दिल्ली अब तो दिल्ली के 20 किलोमीटर का रेडियस भी नहीं रह गया। ये रही दिल्ली, वहां लिखा हुआ है वेलकम टू दिल्ली, स्वागत आपका दिल्ली में स्वागत है। ये स्वागत है इनका। ये नेशनल मीडिया में कह रहे हैं किसानों ने रास्ता रोका हुआ है। ये जो पीली पुताई करके यहाँ पे सरकारी वो रखे हुए हैं, बैरिकेड्स रखे हुए हैं, ये इस तरह के हालात हमने जम्मू कश्मीर में देखे थे। जब जो वहां पे इतने 2-2, 3-3 क्विंटल के जो रास्ते में खड़े रखे हुए हैं, ये किसके हैं? ये तो सरकार ने रास्ता बंद किया, किसान ने रास्ता बंद नहीं किया हुआ। यहाँ से रास्ता खोल दीजिए। ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपको हल क्या लगता है? कल की मीटिंग है, कल फिर दोबारा मीटिंग है, आपको क्या लगता है? और केवल तीनों कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए। अमेंडमेंट ये मान कहाँ रहे हैं? कोई हमको ये तो बताए कि अमेंडमेंट मान रहे हैं। ये उसमें भी ट्वीक कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि MSP को लेके राज्यों को अधिकार दे देंगे। ये बात बताओ, आप जहर होता है, जहर में 1 चम्मच या गिलास, जहर तो जहर है भाई, तो ये जहर है। थोड़ा या घना जहर तो जहर हो तो जान लेगा हमारी। हमें पूरा रिपील चाहिए, भगा दो, खारिज चाहिए हमें। MSP पे कानून, 23 फसलों पे MSP चाहिए। ये जब 23 के अतिरिक्त बाकियों पे भी हमें MSP निर्धारित होनी चाहिए। और दूसरा करते हैं तो फिर उस पे खरीद भी होना चाहिए। 1850 रुपये मक्की की कीमत निश्चित की है तो 900 रुपया किसान की भी की है। वो 900 950 रुपये की कहाँ पर? भैया मैं आपको ये बता दूं कि सरकार की सारी मानसिकता ये है कि पूंजीपति का धन कैसे बढ़े और इसमें आम मजदूर, किसान, आम आदमी लोग मारे जाएं। सरकार की यही मानसिकता है। लेकिन आपको लगता नहीं मार्केटिंग की बहुत दिक्कत आती है किसानों को? इकोनॉमिक सर्वे कहता है अपने घर पे रिपोर्ट नहीं, सरकारी कागज होता है। वो बोलता है कि 5 एकड़ से कम जमीन है, 70% किसान है, इसके 2 एकड़ से कम जमीन है। क्या हो, किसान मार्केट खोल रहे हैं ना, मार्केट खुल जाएगी। तमिलनाडु बेचा है, लंदन बेचेगा। एक ट्रैली भर के 2 एकड़ की क्या हो, तमिलनाडु बेचेगा। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कितना होगा? कैसे सस्टेन कर पाएगी इकोनॉमी? दूसरी बात, इकोनॉमी बात करते हैं ना, USA का मॉडल अपनाएंगे। USA में एक किसान को सालाना 45 लाख रुपए सब्सिडी दी जाती है। इंडिया में 20,000, ये 20,000 भी खत्म होगी। वहां का 45 लाख में खड़ा नहीं हो रहा, सस्टेन नहीं कर पा रहा। हम कैसे जी जाएंगे? और ये फ्रांस में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब जगहों पर ये मॉडल फेल हो चुका है। अब ये हमारे ऊपर थोप रहे हैं। ये इतने फैंसी नाम रख के क्या सोचते हैं कि हमें ये पढ़ने नहीं आते? ये जो इन्होंने बनाया हुआ द फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड क्या कहते हैं फैसिलिटेशन बिल 2020, ये ऐसे फैंसी से लंबे नाम लिख के सोचते हैं हमें समझ में नहीं आएंगे। हमें सब समझ में आता है। हम क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ के आए हैं। जब ये हमसे जो है
सिविल कोर्ट जाने का अधिकार भी छीन रहे हैं। फिर ये जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट 2020 में जो इन्होंने संशोधन करके पूंजीपतियों को पूरी तरह से जमाखोरी करने का लीगल राइट दे दिया है, लीगलाइज ही कर दिया चोरी को, उसमें जाना क्यों है? एक तो सरकार, आप बताओ, एसडीएम सरकार का होता है, डीएम सरकार का होता है, पर एसडीएम बात के लिए सिविल कोर्ट का लिख देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे। सिविल कोर्ट तो 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, पता है वो किस कारण पेंडिंग है? हम ऊपर से जा रहे हैं, हम क्यों जाएंगे कोर्ट में? मैं क्या कहना चाहता हूँ, 3-4 डॉक्टर हैं, WTO, वर्ल्ड बैंक हो, डॉक्टर हुए जो प्रिस्क्राइब करते हैं वही चेप देते हैं, ये वही करते हैं, अपना दिमाग यूज सरकार कह रही है कि किसान को कानून समझ में नहीं आ रहा है। मैं सरकार के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री, वो किसके लड़के थे? डॉक्टर राजेंद्र, प्रथम देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो किसके लड़के थे? क्या ये सरकार बेवकूफ बना रही है? क्या किसान के लड़के नहीं पढ़ते हैं? किसान का लड़का कलेक्टर नहीं होता है? किसान का लड़का एसपी नहीं होता है? सरकार ये मूर्ख बनाने वाली बात कह रही है और बातों से हटा कर कहीं SYPL का मुद्दा, कभी वो आपसे बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने 2 हजार रुपया दिया है, वो कबूतरों का दाना छींटने का काम किए हैं और उसमें एक आदमी का एक दिन का 16 रुपया 45 पैसा हो रहा है। आप इसी से आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि ये बताइए कि उस किसान का, उस आदमी का 16 रुपया 45 पैसा में क्या होने वाला है? किस तरह से सरकार आप चला रहे हो? इस सरकार को जिस समय अन्न की संकट हुई थी, देश में अकाल पड़ा हुआ था, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा, अपने किचन में कहा कि जब तक किसी प्रदेश में आपूर्ति नहीं हो जाएगी उस समय मैं चावल नहीं खाऊंगा। उन्हीं का दिया हुआ नारा है जय जवान। एक चौधरी बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे इन्हें लाल बहादुर शास्त्री बात क्या कि 60 के टिकट से पहले इंडिया इंपोर्ट करता था, फूड सिक्योरिटी में सेल्फ रिलायंट नहीं था, भूखे मरते थे हम। 1962 में इंडिया चाइना के साथ वार हार गया, हमारी आर्मी नहीं थी। नेहरू जी नॉन अलाइंड मूवमेंट चला था, उनका मतलब ये था कि आर्मी हम लड़ाई नहीं करेंगे, प्यार से रहेंगे, निरपेक्ष आंदोलन। लेट मी कंप्लीट। मैं क्या कह रहा हूँ, 62 में चाइना युद्ध आ रहा था, 64 में फैमान आया था, लाखों लोग मरे थे भूख के कारण। लाल बहादुर शास्त्री जी नारा दिया, जय जवान जय किसान, हेल्दी किसान हेल्दी जवान। समझ लो किस लिए उस टाइम पे हमारा देश भूखा मरता था। आज क्या है, ग्रीन रूल्स हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में वहां लागू है क्योंकि ये प्लेन है ना, पानी अच्छा है। आज जो बफर स्टॉक जो बफर स्टॉक के नॉर्मल 40 मिलियन टन हमारे पास होना चाहिए खाने का, 78 मिलियन टन है। किसकी वजह से? इन आतंकवादियों की वजह से। आतंकवादी बोले ने औरंगा बिल्ला, वो क्या नाम उसका, रमेश बिदुड़ी, सारा हमें बढ़ुआ बोल रहा है, 500 रुपए टट्टू बोल रहा है। हमें देश का पेट भरा, हमें क्या बताएंगे? वो अपने पीएम केयर फंड का हिसाब दे देगा हमसे। यहाँ किसानों को पूछ रहे हैं, वो 400 पिज्जा कुल बटे थे, यहाँ पे 400 पिज्जा कुल बटे थे। GNDU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने यहाँ आके बांटे थे, तो GNDU के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इनको हिसाब दे देंगे, भैया ये रहा 400 पिज्जा का हिसाब। क्या नरेंद्र मोदी पीएम केयर फंड का हिसाब देगा? ये यही आतंकवादी तब भी लंगर लगा 20 लाख GDP जो है उसका लगाया गया, वो -23% चला गया इकोनॉमी। बस एग्रीकल्चर की पॉजिटिव थी इस लॉकडाउन के दौरान। बात क्या है कि जैसे 2006 में PMC का ला रिपील हुआ था, उसका कारण क्या है? जिसके 5 एकड़ जमीन है ना, यहाँ 2 एकड़ वाले के आके काम 1 लाख करोड़ आर्थिक व्यवस्था, तो भी पता नहीं किधर गया, कहाँ गया। 8 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ होता बट्टे खाते डालना। बात कहना चाहूंगा आखिर में कि हार हो जाती जब मान लिया जाता है, जीत होती जब ठान लिया जाता है। हम ठान के हैं, मर जाएंगे जीत जाएंगे। भगत सिंह ने कहा था, अपनी बात को खत्म करूंगा कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का एक कतरा इनकलाब लाएगा। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सब तो वड्डी गल है हुण मैंने भी करतार सिंह सराबे दी मैनूं गल याद आउंदी है, इत्थे गदरी बाबिਆਂ ਦੀ याद आउंदी। सेवा देश ਦੀ जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सखलियां ने, जिन्हां देश ਦੀ सेवा 'ਚ पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने। सब तो वड्डी गल है नौजवान, अज नौजवान किसानी संघर्ष दे विच डटिया होया, नौजवान बोल रहा है। अज असली गल्लां जो नौजवान कर रहा है करनियां चाहिदियां, बल्कि सानू 2 फसलों उत्ते MSP दी नहीं लोड़, सानू सारियां फसलों उत्ते MSP दी लोड़ है। ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV।